Assalamu alaikum class second year. How are you all? Very happy good morning. It's really very happy good morning. It isn't morning here at SNC because it's raining here. How are you all students? Can you hear me class? Is my voice clear to all of you? Yes. Do tell me first. Can you hear me? Hello. Yes. Jennifer. Good morning. Yes. Are you there students? Oh. Okay, thank you so much. Yes, ma'am, we can hear you. Thank you so much. Is my voice clear, Jennifer? Yes, dear. Is my voice clear? Okay. Thank you so much, Vanessa. Okay, let's start the summary writing. Our today's topic is about the summary writing. In the second year, summary writing is a compulsory question which is given by the UHS in your examination. Walaikum Assalam. What do you know about the summary writing? What is a summary basically? The definition of the summary. Who will tell me about the summary writing? What are the components and what are the major elements of the summary writing? What is a definition of the summary writing? Yes, Jennifer, is my voice clear to you? Yes, dear. जी आवाज़ नहीं आ रही जी आवाज़ आ रही है आप सब क्या जी जो लेट ज्वाइन करते हैं ना उनको लगता है आवाज़ का मसला हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह फाइन व्हाट अबाउट यू G. Summary writing. There is no voice, there is no a short brief explanation of a certain passage. Very good, Jennifer. Very good answer. बाकी सब दे लेकिन हमें आवाज़ नहीं आ रही होनी. Jennifer give me the answer and so Mekunisa.
State the text titles, authors and major points of the text. Very good. You know about the summary writing. What is basically summary writing? Let's start the topic. What is summary writing? Objectives. First of all, I want to tell you the practice. Give an appropriate definition for a summary. Know the characteristics of a good summary. Learn the techniques in summary writing. Learn the steps in summary writing practice. Okay, summary writing practice किस तरह से होती है? ये सारे objectives हैं, देख लें आप लोग उनको अच्छे तरीके से. Give a appropriate definition for a summary. Know the characteristics of a good summary. Learn the techniques in a good summary and learn the steps in summary writing practice. ठीक है, इसमें अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि appropriate definition क्या है summary writing की. ठीक है, characteristics क्या है good summary writing के. ठीक है, summary to write a summary is not a difficult task. Okay, but a good summary writing is a difficult task or is the main task to write a good summary with the appropriate words and with the good words. Okay, to write a summary is not a major thing. Okay, the major thing and the important thing is that you have to write in the appropriate words by using the good words. Okay, and you have to make summarize of a passage in your own words, not the same words to copy to paste there. Do you know about the plagiarism? What is a plagiarism? Okay, Safia, do concentrate on what I am saying and what I am teaching you. ओके, जेब का भी आवाज आ रही है, अब क्लियर है मैम. ओके, ठीक है. क्या कहते हैं कि समरी राइटिंग का ये मतलब नहीं होता कि आप उसको जो है कॉपी टू पेस्ट कर लें सारे का सारा. ठीक है, इस तरह की जो समरी होती है उस पर इतना बड़ा क्रॉस लगा के आपको कहते हैं चलिए आप लोग फारिग हैं. ठीक है, यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ अ summary with appropriate words. Know the characteristics of a good summary. Learn the techniques in a summary writing. Learn the steps in a summary writing practice. Okay, let's start. What is summary writing basically? Do read it and understand it. Copying something that is not written by us is plagiarism. Yes, copy to paste, like which is written on the paper. You have to copy on your paper. That is a plagiarism. To write according word to word of the copy to paste here. Okay, there is no any word. But if you plagiarism the summary paragraph and you have to use the same words of the summary passage, then you will only receive a big roast from your side. Okay, a summary is a shortened passage which retains the essential information of the original. It is fairly brief restatement in your own words of the contents of a passage. ये बड़ी चीज को एक दफा और फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ.
Okay, what is summary class? A summary is a shortened passage. कहते हैं shortened passage है which contains the essential information of the original और essential information of the original जो है ये आती है आपके पास. It is fairly brief statement in your own words. brief statement है, ये statement है आपके own words की of the contents of the passage, passage के contents की, ठीक है. क्या कहते हैं कि what is a summary? Summary है क्या? Summary is a shortened passage. एक shortened passage है which contains the essential information of the original. अब summary writing in my own words, ठीक है, easy to understand it, but please try to understand it and concentrate on my words, what I am going to say, okay, what I am going to tell you about the summary writing. summary writing बेसिकली क्या होता है कि एक शॉर्टन पैराग्राफ आप लोगों को दिया है, लॉन्ग पैराग्राफ भी हो सकता है, ठीक है. पैसेज आपको दिया है जिसमें इसेंशियल इंफॉर्मेशन है आप लोगों की, ठीक है, ओरिजिनल है, ठीक है, लेकिन आप जब उसको शॉर्ट और कंसाइज करके लिखेंगे, लेकिन जो आप समरी लिख रहे हैं ऑल द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स शुड बी देयर. ओके, इट इज वेरी ब्रीफ री स्टेटमेंट. ये क्या है? वेरी ब्रीफ री स्टेटमेंट होती है, मुख्तसर ब्रीफ मुख्तसर री स्टेटमेंट है. एक स्टेटमेंट जो आपको दी हुई है उसी को ये री स्टेटमेंट. Are you getting my point? In your own words, आपके अपने लफ्ज़ों में. For example, there is a passage about the Qaeda Azam. Okay, when he was born on 25 December 1876. Okay, and he got his early education from Karachi, and then he went to abroad for higher studies, and he got the degree of Barat. याद है मुझे तो कैसे याद हुआ वैसे. कायदे आजम का. ओके, अब ये सारा कायदे आजम का आपके पास आ गया, ए टू जी सारी इंफॉर्मेशन आ गई. ओके, जब आप इसको समराइज करेंगे, इफ देयर इज नॉट एनी द वेयर ही बरीड, वहाँ पर नहीं लिखा हुआ आप लोगों के पास, ठीक है, वेयर ही वाज बरीड, कहाँ पर वो दफन हुए, व्हेन ही डेट ऑफ डेथ, ठीक है. अब आप क्या करेंगे, जो इंफॉर्मेशन वहाँ है उसी इंफॉर्मेशन को आप शॉर्ट और कंसाइज करेंगे और समराइज करके लिखेंगे, ठीक है. अब ये नहीं कि जी हाँ जी हमें पता है इनकी डेथ जो हुई थी वो जो है वो 11 सितंबर को हुई थी, तो हम वो का सारा लिख दें. नहीं, आपने अपनी जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे रिलेटेड ही आप लोगों ने लिखना है. वो इंफॉर्मेशन आपने कोई भी नहीं लिखनी वहाँ पर जहाँ पर जो है आप लोगों का लाइक अपने पास से अपने कुछ नहीं लिखना है, ठीक है. इम्पर्सनल टोन में लिखना है, पर्सनल टोन नहीं होनी चाहिए, ठीक है. इट इज वेरी ब्रीफ स्टेटमेंट इन योर ओन वर्ड्स. अपने ही वर्ड्स में अपना कंटेंट्स ऑफ पैसेज के जितने भी कंटेंट्स, ठीक है. ये नहीं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जब भी मैंने समरी राइटिंग करने के लिए दिया उन्होंने वही वहाँ से उठाया वही लिख दिया. आई डोंट नीड दिस काइंड ऑफ समरी राइटिंग फ्रॉम योर पीपल. ओके, समझ आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों को? ठीक है, मुझे कोई बहुत अच्छी सी चीज़ चाहिए आप लोगों से, ठीक है, जो कि अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की वाकई में, जी. इसकी समरी राइटिंग की जो है डेफिनेशन इसको अच्छे से देखिए. आपकी समरी राइटिंग है क्या? शॉर्टन का जो शूटिंग से एसेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द रीजन, इट इज फेयरली ब्रीफ स्टेटमेंट इन योर वर्ड्स द कंटेंट्स ऑफ द पैसेज. क्लियर? Do you want to ask any question from it?
जी, characteristics of a good summary. Good summary के characteristics क्या हैं? Can be understood without reference to the original. कहते हैं कि इसको समझा जा सके without original. अगर original नहीं है, summary writing का मकसद क्या है कि हमारे पास सारे important points हैं जो आ जाएं, ठीक है? और इसको हम understand करें without reference to the original के original के without जो है हमारे पास जो है वो हम उसको understand कर सकें good summary writing को. Is a faithful reproduction. Faithful reproduction है of or contains only the ideas or information of the original. Is a faithful reproduction कहते हैं faithful reproduction चाहिए of or contains only the ideas or information of the original. के original की information क्या है हमारे पास. Is a brief without any unnecessary details. ठीक है, और brief होनी चाहिए without any unnecessary details. ठीक है, repetition आप लोगों ने कोई नहीं करनी. For example अगर रिपीट हो रही है कोई वर्ड्स वहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, आप नहीं करने समरी राइटिंग में. दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट शॉर्ट एंड कंसाइज स्टेटमेंट. ठीक है, इसी तरह से फिर होगी ना. ठीक है, फेथफुल रिप्रोडक्शन होनी चाहिए, कंटेन्स आइडियाज इंफॉर्मेशन ओनली द ओरिजिनल होनी चाहिए. इज अ ब्रीफ विदाउट एनी अननेसेसरी डिटेल नहीं होनी चाहिए इसमें कोई भी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज इट क्लियर टू यू? कोई भी इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए. ओके, क्योंकि फेथफुल रिप्रोडक्शन होनी चाहिए, जाहिर सी बात है रिप्रोडक्शन है ना, रिप्रोडक्शन तो हमें मिल गई. ठीक है, तो फेथफुल रिप्रोडक्शन है. ठीक है, समय राइटिंग इज फेथफुल रिप्रोडक्शन चाहिए, कंटेन्स ओनली द आइडियाज इंफॉर्मेशन ऑफ द ओरिजिनल. आइडियाज और इंफॉर्मेशन ऑफ द ओरिजिनल. ओरिजिनल की इंफॉर्मेशन क्या है. इज अ ब्रीफली विदाउट एनी अननेसेसरी डिटेल्स. और ब्रीफ होनी चाहिए विदाउट एनी अननेसेसरी डिटेल. अननेसेसरी डिटेल्स जो है इसमें नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अननेसेसरी डिटेल्स नहीं होनी चाहिए. लाइक नेसेसिटी जो है वो सिर्फ हमारे पॉइंट्स इसमें आएंगे. ठीक है, इसको पढ़ें और समझें अच्छी तरह से. अपने पॉइंट ये जो सारे के सारे पॉइंट्स अपने ज़हन में अच्छी तरह से बिठाएं. ठीक है, फेथफुल रिप्रोडक्शन लाइक आपने रिपीट कोई वर्ड्स नहीं करने इसमें. ठीक है, इन माई ओन वर्ड्स आसानी से आप लोगों को समझाती हूँ. ठीक है, बहुत मुख्तसर आप लोगों ने लिखना है. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपने क्या करना है, इफ़ यू आर गोइंग टू राइट अ समरी, आपने सबसे पहले एक पैसेज लेना है. पैसेज को जो है आप लोगों ने क्या करना है, री स्टेटमेंट उसकी करनी है. पढ़ें उसको, पढ़ के जो है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट करें. जब इंपॉर्टेंट पॉइंट आप हाईलाइट्स कर देते हैं, उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करने के बाद आप लोग जो है वो सारे का सारा उसमें लिख देंगे. ठीक है, हाईलाइट किया, हाईलाइट करने के बाद आपने उसके देखे कोई रिपीटेशन तो नहीं है जो हमने हाईलाइट किया. ठीक है, रिपीटेड वर्ड्स होंगे, रिपीटेड जो है सेंटेंसेस होंगे, तो आप लोग उसको छोड़ देंगे. ठीक है, फिर उसके बाद जो है आगे आप लोग लिखना शुरू करेंगे. ओके, ओके जी. ब्रीफ विदाउट एनी अननेसेसरी डिटेल. अननेसेसरी डिटेल जो है वो इसमें नहीं होंगी आप लोगों की. ठीक है, पढ़ें इसको 5 मिनट के लिए. जो नहीं समझ आता पूछे मुझसे. ये पॉइंट्स मैंने आप लोगों से एट द एंड ऑफ द लेक्चर पूछने भी है कि मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को. समरी राइटिंग बेसिकली है क्या. ओके.
जी स्टूडेंट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट दैट टेक्निक समरी राइटिंग। टेक्निक्स क्या है समरी राइटिंग की, ठीक है। अभी हमने लास्ट में क्या पढ़ा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड समरी राइटिंग, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड टेक्निक्स ऑफ अ गुड समरी राइटिंग की, समरी राइटिंग की टेक्निक्स क्या है, ओके। Paraphrasing. What is a paraphrasing? To write in a simple words and simple sentence is called a paraphrasing. Paraphrase means to completely correctly express other people's ideas in one's own word. मतलब paraphrase का मीन है कि completely और correctly express करना other people ideas in one's own words, के अपने ideas को जो है किस तरह से हम express कर सकते हैं अपने अल्फाज में, ओके। पैराफ्रेज मीन्स टू कंप्लीट एंड करेक्टली एक्सप्रेस ऑफ अदर पीपल आइडियाज, दूसरों के आइडियाज जो है करेक्टली और कम्प्लीटली अपने अल्फाज में लिखना जो है वो पैराफ्रेजिंग कहलाता है। पैराफ्रेजिंग मीन्स अ सिंपल सेंटेंस, ओके। राइट इन अ सिंपल लैंग्वेज, राइट अ सिंपल सेंटेंस, ओके, इन योर ओन वर्ड्स। टेक्निक ऑफ अ समरी राइटिंग, okay. The importance of a paraphrasing, importance क्या है paraphrasing की, it helps us understand to read them better, करते हैं हम हेल्प करती है और read them better में कि better क्या है, so it grasps us central idea and the main point, central idea क्या है, main points क्या है, it helps us right to the point क्या बात करनी है, और onwards अपने अल्फाज में हम लोगों ने क्या बात करनी है। Is it clear? Yes class। जी इस स्लाइड को बड़े अच्छे से जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से।
जी, क्लास इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द ओरिजिनल बेटर कहते हैं ये हमें मदद करता है ओरिजिनल बेटर बेटर के ओरिजिनल से ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ होता है, शॉर्ट होता है, ईज़ी टू अंडरस्टैंडेबल होता है, वी कैन अंडरस्टैंड इट वेरी ईज़िली, ओके? इट हेल्प्स अस to grasp central idea and the main points, what are the main points, and it grabs a central idea क्या है, it helps us straight to the point लिखना है in your own words, अपने ही अल्फाज में आप लोगों ने जो है वो लिखना है, ठीक है? कॉपी टू पेस्ट आप लोगों ने नहीं रखना, प्लेजरिज्म इसमें नहीं होना चाहिए। Steps in a writing a summary को राइट किस तरह से करना है, रीड द ओरिजिनल केयरफुली एंड कॉम्प्रीहेंड इट्स मीनिंग होली एंड करेक्टली। कहते हैं ओरिजिनल को जो है उसको केयरफुली आपने रीड करना है एंड कॉम्प्रीहेंड इट्स मीनिंग होली एंड करेक्टली, और फिर इसके मीनिंग को आपने देखना है होली एंड करेक्टली जो है कॉम्प्रीहेंड करना है आप लोगों ने, ठीक है? ओके जी, टीचर को लगता है ज़्यादा समझ आ रही है, जी मैम, जी मैम। ओके, कितना मज़ा आता ना यहाँ पर हम होते। आजकल मैंने आप लोगों का डायलॉग कंपटीशन करवा देना था यहाँ पे, कितना मज़ा आता। अभी जब आप लोग आएंगे फिर कोविड-19 हाउ यू हैव स्पेंड योर डेज इन कोविड-19, वो सारी असाइनमेंट आप लोगों ने रेडी करके लेके आनी है, ठीक है? यू हैव टू राइट हियर। आज हमने पढ़ना नहीं था, अगर हम क्लास में होते तो आज हम लोगों ने डायलॉग कंपटीशन करना था या फिर कोई कंपटीशन करना था, 5 मिनट स्पीच कंपटीशन होना था या कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटी होनी थी आप लोगों की, ठीक है? और जब एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाते हैं तब आप लोग क्यों? जी। असाइनमेंट में आप लोग जो भी है वो लिखेंगे ना? तलहा को आवाज़ क्यों नहीं आ रही? तलहा को आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, इंशाल्लाह फिर कंपटीशन करेंगे। फिर मैं कंपटीशन करने का कहती हूँ आप लोग, आप कहते हैं नहीं मैडम हम मैडम बुलाए हम भी इसको बुला रहे हैं, ओहो मुझे तो कुछ भी नहीं आता, क्या बोलूँगी मैं? फिर ये सारी आप लोगों की जो सिचुएशंस होना शुरू हो जाती है ना, एकदम आपके हाथ-पाँव फूल जाती हैं, आपका शुगर लेवल डाउन हो जाता है, बीपी भी साथ में ही डाउन हो जाता है, वो चीज़ें नहीं चाहिए मुझे, ओके? बी कॉन्फिडेंट, स्पीक इंग्लिश। अच्छा सीज़न नोटिस 1 को आ रही है, ठीक है। ओके, रीड द ओरिजिनल केयरफुली एंड कॉम्प्रीहेंड इट्स मीनिंग होली एंड करेक्टली। कहते हैं रीड करना है आपने ओरिजिनल को केयरफुली एंड कॉम्प्रीहेंड इट्स मीनिंग होली एंड करेक्टली। फिर कॉम्प्रीहेंड करना है आपने उसके मीनिंग को होली एंड करेक्टली, बिल्कुल सही तरीके से। कंसीडर द ओरिजिनल आर्टिकल्स एज अ होल, और आर्टिक उस आपने कंसीडर करना है फुल आर्टिकल को एज अ होल ही कंसीडर करना है, नॉट इन आइसोलेटेड सेंटेंसेस। कोई भी आइसोलेटेड सेंटेंसेस को जो है उसको कंसीडर नहीं करना, बल्कि पूरी की पूरी समरी जितनी भी लिखी होगी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी होंगे वो सारे का सारा ही जो है वो आप लोगों ने इसमें लिखना है। पढ़ें इसको केयरफुली, जो नहीं समझ आता पूछे मेरे से, मैं आपकी अटेंडेंस से लेती हूँ।
जी जी, प्रेजेंट लग रही है आप लोगों की बच्चों, आप लोगों की लग जाती है प्रेजेंट।